Good morning, friends. Welcome to my 18th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding quartiles. I have told that quartile is something which divides an entire series of data into four equal parts. So there are three quartiles, Q1, Q2 and Q3. Q1 is known as lower quartile and Q2 is known as middle quartile and Q3 is known as upper quartile. Q1 and Q3 are together known as extreme quartiles. So Q1, Q2, Q3, there are three quartiles which divides the entire series into four equal parts. What is Q1? Q1 is such a value that below its there are 25% items and above its there are 75% items. Q2 is such a value that below its there are 50% items in a series and above its there are 50% item in a series. Q3 is such a value that below its there are 75% item in a series and above its there are 25% item in a series. So we have discussed the concept of quartiles Q1, Q2 and Q3. The value of Q1 is also value of Q2 is also known as median. So median is equal to Q2. We have already discussed this concept. Then we have discussed how to compute quartiles under individual series, under discrete series and under continuous series. We have discussed under individual series the formula for calculation of quartile is n plus 1 by fourth item. And in case of discrete series, the same formula is used, that is n plus 1 by fourth item. But we have to identify the quartile in case of discrete series first in CF column, then in corresponding X column. We have discussed all these concepts, and today we will start our discussion computation of quartile in case of continuous series. So what is a continuous series? I have already told that continuous series is a series where X and F will be given. X means variables will be given, F means frequency will be given. But the X values or variable values will be given in class interval form. Class interval form means 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. Like this, the values will be given. Okay, now today we will discuss how to solve that type of problems. Okay, how to compute quartiles in case of continuous series. Before discussing this, let me first share my screen with you. Then we will discuss computation of quartiles in case of continuous series. 1 minute, please. Okay, friends. So we will discuss computation of quartile in case of continuous series. Okay. So write down computation of quartiles in continuous series. Now please see what is a continuous series. I have already told continuous series में आपको x देगा और f देगा, लेकिन x वैल्यू जो देगा वो कौन से फॉर्म में देगा, वो वैल्यू देगा क्लास इंटरवल फॉर्म में. Okay, so we are discussing computation of quartile in continuous form. On number 1, in case of continuous series, we cannot directly calculate quartile. First, we have to calculate quartile class, and out of that quartile class, we have to find out quartile by applying a formula. So first लिखेंगे, first point here, first we have to identify quartile class. Second point, then
out of quartile class, we have to identify, we have to find out quartile by applying formula. तो हमको क्या करना है, हमको पहले फर्स्ट केस में क्वार्टाइल क्लास निकालना है. सो पहले क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे, फिर क्वार्टाइल क्लास से क्वार्टाइल निकालेंगे, क्या अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो पहले क्वार्टाइल क्लास निकालना है, फिर क्वार्टाइल क्लास से फॉर्मूला डालकर क्वार्टाइल निकालना है. तो यहाँ पर कितना फॉर्मूला होगा, 3 फॉर्मूला होगा. Q1 का एक फॉर्मूला, Q2 का एक फॉर्मूला, Q3 का एक फॉर्मूला. लेकिन ये तीनों फॉर्मूला समझने से पहले हमको पहले Q1 के निकालने से पहले Q1 क्लास निकालना पड़ेगा, फिर Q2 निकालने से पहले Q2 क्लास निकालना पड़ेगा, फिर Q3 निकालने से पहले Q3 क्लास निकालना पड़ेगा. am I क्लियर? तो पहले हम समझेंगे कि किसका कैलकुलेशन, Q1 का कैलकुलेशन. सो लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल 1, कंप्यूटेशन ऑफ Q1. पहले क्या निकालना सीखेंगे, Q1 निकालना. तो Q1 तो डायरेक्टली नहीं निकल सकता है. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई Q1 क्लास. सो व्हाट इज Q1 क्लास, राइट डाउन हाउ टू कैलकुलेट Q1 क्लास. Q1 क्लास इज इक्वल टू, बेटा हमेशा हमारा मीडियन में कैसे निकलता था, मीडियन क्लास n बाई 2th आइटम, यहां पर हो जाएगा n बाई 4th आइटम. फॉर्मूला समझ में आ गया. तो Q1 क्लास कैसे निकलेगा, n बाई 4th आइटम. फिर एक बार Q1 क्लास निकल गया, फिर हम कैलकुलेट करेंगे Q1. तो ये Q1 क्लास n बाई 4th आइटम निकलेगा, और उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसमें, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट फर्स्ट इन CF, then in corresponding X. पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसमें, CF में, देन इन कॉरेस्पॉन्डिंग X वैल्यू. जैसे डिस्क्रीट सीरीज में करते थे उसी हिसाब से करेंगे. अभी हम Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Q1? तो Q1 क्लास निकल गया. फ्रॉम Q1 क्लास यू हैव टू फाइंड आउट Q1. तो लिखेंगे फ्रॉम Q1 class we have to find out Q1 by applying following formula. Q1 क्लास से Q1 निकालेंगे ये फॉर्मूला डालकर. कौन सा फॉर्मूला, तो लिखेंगे Q1 का फॉर्मूला क्या है, तो लिखो Q1 इज इक्वल टू L प्लस n बाई 4 माइनस CF बाई F इंटू आई. बेटा ये याद रहेगा, फॉर्मूला क्या है, L प्लस n बाई 4 माइनस CF बाई F इंटू आई. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Q1. अभी सब चीज क्या है, जैसे मीडियन में पढ़े थे, सारा का सारा चीज मीडियन जैसा है. क्या क्या है, पहले L क्या है देखेंगे. व्हाट इज L? L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ व्हाट, ऑफ Q1 क्लास. Q1 क्लास का लोअर लिमिट जो होगा वो होगा L. व्हाट इज N? N क्या है, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, दैट इज इक्वल टू समेशन F. अभी CF क्या है, CF और F ये इंपोर्टेंट, हमेशा इंपोर्टेंट CF है. CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एबव द Q1 क्लास. So this is CF of the class above the Q1 class.
जो Q1 क्लास है उससे ऊपर वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं CF। ये याद रखना है, CF को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला क्लास का। लेकिन F क्या है? उसी क्लास का। तो यहां पर F मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द Q1 क्लास। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई क्या मतलब क्या है? आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ द Q1 क्लास। बेटा ये फॉर्मूला समझ में आ गया? कंप्यूटेशन ऑफ Q1, Q1 का फॉर्मूला क्या है? पहले Q1 क्लास निकालेंगे। Q1 क्लास कैसे निकलेगा? Q1 क्लास निकलेगा n/4 आइटम। एक बार Q1 क्लास निकल गया, फिर फॉर्मूला डालेंगे क्या निकालने के लिए? Q1 निकालने के लिए। फॉर्मूला बहुत इजी है, Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस CF by F into I. What is L? L means lower limit of the Q1 class. N means total number of items, that is equal to summation F. CF का मतलब क्या है? Cumulative frequency of the class above the Q1 class. ये बहुत important. CF means above. F means frequency of the Q1 class and I is equal to class interval of the Q1 class. बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो Q1 समझ के, Q1 का फॉर्मूला समझ के, अभी Q1 समझ गए तो Q2 फिर उसी तरह से लिखेंगे, फिर Q2 का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर Q3 लिखेंगे, फिर Q3 का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसके ऊपर एक प्रॉब्लम बनाएंगे। बात समझ में आ गया? Q1 समझ गया तो Q2 उसी हिसाब से होगा। बेटा देखो Q1 का क्लास कैसे निकला है? n/4। तो Q2 कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2n/4 आइटम Q2। अच्छा, Q1 का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/4 माइनस CF बाई F इंटू आई। Q2 का फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला होगा, लेकिन n के जगह पर हम लिखेंगे 2n। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो ये ही दोनों अंतर होगा कंप्यूटेशन ऑफ Q2 में। Q1 में जो लिखा है वही लिखना है, लेकिन Q1 क्लास जैसे लिखा था अभी Q2 क्लास हो जाएगा 2n/4 आइटम। फिर Q2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर Q3 उसी तरह से 3n/4 हो जाएगा, फिर उसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ Q2, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आगे जाएंगे। बेटा लिखो, अभी लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, हेडिंग करो कंप्यूटेशन ऑफ Q2। Q2 कैसे निकालेंगे? पहले लिखना है व्हाट इज Q2, फिर उसके ऊपर बनाएंगे व्हाट इज Q2। Q2 क्या है? Q2 को पहले Q2 का क्लास निकालेंगे, Q2 क्लास। व्हाट इज Q2 क्लास? Q2 क्लास कैसे बनेगा? जैसे n/4 था Q1, ये हो जाएगा 2n/4 आइटम। इसको पहले कहां पर ढूंढेंगे? फास्ट फाइंड इन CF कॉलम, देन इन कॉरेस्पॉन्डिंग X वैल्यूज। पहले कहां पर ढूंढेंगे? पहले ढूंढेंगे CF में, फिर ढूंढेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग X में। बेटा समझ में आ गया? एक बार मिल गया, फिर हम Q2 का फॉर्मूला डालेंगे। Q2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? L प्लस, अच्छा n के बदले में क्या लिखेंगे? n के बदले में हो जाएगा 2n/4 माइनस CF बाई F इंटू आई। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Q2। बेटा यहां पर L क्या है? L इज इक्वल टू
lower limit of which class? Q2 class. Lower limit of Q2 class. समझ में आ रहा है क्या? n is equal to summation f, sum total of f, that is equal to total number of items. अच्छा, then CF है CF of the class above Q2 क्लास. Q2 क्लास का ऊपर वाला क्लास का CF. F क्या है? फ्रीक्वेंसी of the Q2 class. And what is I? I we have already calculated. I is equal to class interval of Q2 class. Q2 class का class interval. So this is computation of Q2. बेटा समझ में आ रहा है क्या? Q2 जैसे निकला उसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? Q3. फॉर्मूला पहले लिखेंगे, पहले Q3 क्लास निकालेंगे, फिर Q3 निकालेंगे. तो लिखेंगे, हेडिंग करो, कंप्यूटेशन ऑफ Q3 निकालने की कोशिश करेंगे. पहले फॉर्मूला लिखेंगे, Q3 क्या है? पहले Q3 का क्या निकालेंगे? क्लास निकालेंगे. तो लिखो Q3 क्लास. बेटा Q3 क्लास क्या होगा? 3n/4 आइटम. Q1 में था n/4, Q2 में हुआ 2n/4, Q3 में हुआ 3n/4 आइटम. तो कैसे उसको ढूंढेंगे? फर्स्ट फाइंड इट इन CF column, then in corresponding X. पहले CF में ढूंढो, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग X में ढूंढो Q3 क्लास क्या है. एक बार Q3 क्लास मिल गया, फिर Q3 का वैल्यू निकालेंगे. फॉर्मूला डालेंगे, Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इंटू आई. बेटा वही फॉर्मूला है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 2n/4 था, यहाँ पर कितना हो गया? 3n/4 हो गया. दिस इज द फॉर्मूला. सारे वैल्यूज क्या क्या है हमको तो याद हो गया, लिख लेते हैं और एक बार. व्हाट इज एल? एल मींस लोअर लिमिट ऑफ व्हाट? ऑफ Q3 क्लास. Q3 क्लास का लोअर लिमिट एल. व्हाट इज एन? एन मींस टोटल ऑफ एफ, समेशन एफ. नेक्स्ट व्हाट इज CF? बहुत इंपॉर्टेंट. CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लेकिन किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? एबव वाला सीरीज ऑफ द क्लास एबव Q3 क्लास. Q3 क्लास का ऊपर वाला क्लास का CF. व्हाट इज F? F मींस उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द Q3 क्लास. एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे I. What is I? I is equal to class interval of the Q3 class. Q3 क्लास का क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं क्या? What is Q3? बात समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज रिगार्डिंग द फॉर्मूलाज. अभी हम दो प्रॉब्लम करेंगे. किसके ऊपर? ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर. एग्जाम्पल 1 करेंगे, एग्जाम्पल 2 करेंगे. दोनों करके समझ जाएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या क्वार्टाइल्स इन केस ऑफ व्हाट? कॉन्टिन्यूअस सीरीज. ओके, तो लिखेंगे. हाँ बेटा लिखो. अभी लिखो एग्जाम्पल नंबर 1.
Example number 1. Suppose x is given and f is given. x वैल्यू दिया हुआ है, f वैल्यू दिया हुआ है. हमको क्या करना है, इस सीरीज का क्या निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है. ओके, व्हाट इज x वैल्यू, व्हाट इज f वैल्यू. x वैल्यू सपोज इज गिवन 0 to 10. फिर दिया हुआ है 0 to 10. नेक्स्ट है 10 to 20. नेक्स्ट है 20 to 30. नेक्स्ट दिया हुआ है 30 to 40. नेक्स्ट दिया हुआ है 40 to 50. नेक्स्ट दिया हुआ है 50 to 60. नेक्स्ट दिया हुआ है 60 to 70. This is the x value given and corresponding f value is given 0 to 10 is equal to 2, 10 to 20 is equal to 3, 20 to 30 is equal to दिया हुआ है 5 और 30 to 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 40 to 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, 50 to 60 क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 और 60 to 70 क्वेश्चन में दिया हुआ है 3. Now what is n? निकाल लो n का वैल्यू कितना है. n वैल्यू यू कैन इजीली कैलकुलेट. n इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला दो. n इज इक्वल टू कितना, 2 3 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 3 20. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्या निकालने को बोलता है, क्वेश्चन पूछता है फाइंड आउट Q1, फाइंड आउट Q2, फाइंड आउट Q3. तीनों निकालने को बोला है. ओके तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको निकालना पड़ेगा CF. व्हाट इज CF? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. बेटा फर्स्ट का होगा कितना, 2, सेकंड का होगा 2 + 3 5, थर्ड का होगा 5 + 5 10, फोर्थ का होगा 10 + 2 12, नेक्स्ट का होगा 12 + 3 15, नेक्स्ट का होगा 15 + 2 17, नेक्स्ट का होगा 17 + 3 20. ये सब निकल गया. अभी हमको Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है. ओके तो अभी ये सब हो गया. फिर अभी Q1, Q2, Q3 निकालते हैं. तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ Q1. बेटा Q1 निकालेंगे, पहले Q1 का फॉर्मूला, Q1 क्लास निकालेंगे, फिर Q1 निकलेगा. तो फर्स्ट Q1 क्लास. व्हाट इज Q1 क्लास? हम पढ़े हैं Q1 क्लास इज इक्वल टू n/4 आइटम. बेटा n/4 कितना आता है, n कितना है 20/4, दैट इज इक्वल टू 5th आइटम. ये 5th आइटम कहां पर है हमको ढूंढना पड़ेगा. कहां पर, तो 2 में 5 है क्या, नहीं 5 में 5 है क्या, हाँ. तो ये हो गया हमारा कौन सा क्लास, ये हो गया हमारा Q1 क्लास. बेटा Q1 क्लास मिल गया. तो देयरफॉर Q1 क्लास इज इक्वल टू कितना होता है Q1 क्लास, अभी निकाल लेंगे. Q1 क्लास हो रहा है कितना, 10 से 10 से 20. अभी Q1 निकालेंगे. व्हाट इज Q1? फॉर्मूला डालेंगे. Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/4 माइनस CF बाई F इंटू I. दैट इज इक्वल टू n/4 है ये बेटा. हाँ, व्हाट इज L? L मीन्स लोअर लिमिट. बेटा 10 और 20 के बीच में लोअर लिमिट कौन सा है, 10 है. प्लस n/4. बेटा n कितना, n तो निकाले हैं 20, 20/4, 20/4 हो गया 5, क्योंकि हम 5 भी निकाले हैं 20/4, 5 माइनस CF किसका, उसके ऊपर वाला क्लास का. बेटा उसके ऊपर, ये तो Q1 क्लास है, उसके ऊपर वाला क्लास का CF देखो, उसके ऊपर वाला क्लास का CF कितना है, 2 है, ये वाला फिगर. अच्छा
तो -2 बाई एफ, एफ कौन सा है, उसी क्लास का, उसी क्लास का ये है, कितना है 3, तो ये दोनों वैल्यू है, एक है 2 एक है 3, तो ये 2 और 3 आ गया बाई 3 इंटू डिफरेंस आई, आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, 10 और 20 के बीच में इंटरवल, 10 और 20 के बीच में इंटरवल कितना है 10, दिस इज द वैल्यू दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 10 प्लस ये हो गया ऊपर में 5 माइनस 2 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 10, 3/3 कितना होता है बेटा, कैंसिल हो गया, ये हो गया 10, 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20, बेटा Q1 का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। एक बार Q1 निकल गया फिर हम निकालेंगे Q2, तो फर्स्ट वाला को सॉल्व हो गया, फिर हम निकालेंगे Q2, Q2 का क्या करेंगे, पहले Q2 क्लास निकालेंगे, फिर Q2 का वैल्यू निकालेंगे, Q2 क्लास, बेटा Q2 क्लास कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर n/4 था, यहाँ पर हो जाएगा 2n/4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू n/4, n कितना है 20/4 कितना होता है 10th आइटम, 10 नंबर वाला आइटम, अभी ढूंढेंगे 10 कहां पर है, तो Q2 क्लास कितना होगा, Q2 क्लास इज इक्वल टू, ढूंढेंगे 10 नंबर वाला आइटम कहां पर है, ढूंढो, 2 में 10 है क्या, नहीं, 5 में 10 है क्या, नहीं, 10 में 10 है, तो दिस इज Q2 क्लास, कौन सा Q2 क्लास है, ये वाला Q2 क्लास, 20 से 30 वाला Q2 क्लास। अगर 20 वाला Q2 क्लास है तो 20 से 30 वाला आइटम को ढूंढ कर देखेंगे सब होगा, तो Q2 का कैलकुलेशन करेंगे, तो Q2 इजिकल टू लिखेंगे, Q2 इजिकल टू फॉर्मूला डालो, क्या है लिखा हुआ है, फॉर्मूला है L प्लस, ये फॉर्मूला अलग हो जाएगा, n/4 था, यहाँ पर हो जाएगा 2n/4 माइनस CF/F इंटू आई, दैट इज इक्वल टू एल, एल क्या है लोअर लिमिट, बेटा किसका Q2 का, Q2 कौन सा है 20 से 30, ये 20 से 30, ये Q2 क्लास आ गया 20 से 30, 20 से 30 का लोअर लिमिट कितना है 20 प्लस, अच्छा 2n/4, अभी तो ऊपर में कैलकुलेट किए, 2n/4 होता है 10 माइनस CF, बेटा ये क्लास देखो 20 से 30 वाला क्लास देखो, उसके ऊपर वाला क्लास 20 से 30 ये है, उसके ऊपर वाला क्लास का CF, उसके ऊपर वाला क्लास का CF ये है, कौन है 5, तो -5/F, F उसी का 20 से 30 का कितना है 5 है, देखो 5 है, बाई 5 इंटू आई, आई क्या है गैप, गैप किसके बीच में 20 और 30 के बीच में, कितना गैप है 10, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 5/5 इंटू 10, बेटा कितना आएगा 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30, बेटा हमारा Q2 निकल गया कितना 30, Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, अभी हमको कैलकुलेट करना है क्या Q3, चलो कैलकुलेट करते हैं Q3, पहले लिखेंगे Q3 क्लास निकालेंगे फिर Q3 निकालेंगे, ठीक है, तो देखते हैं Q3, अभी निकालेंगे Q3, देखो Q3 निकालते हैं, Q3 कंप्यूटेशन, बेटा Q3 कैसे निकालेंगे, पहले Q3 क्लास निकालेंगे, तो Q3 क्लास फॉर्मूला क्या है Q3 क्लास का, Q3 क्लास का है Q1 का था n/4, Q2 का था 2n/4, यहाँ पर हो जाएगा 3n/4 आइटम, दैट इज इक्वल टू 3, n कितना था रे बेटा, n था तो 20 हमारा, तो 3 इंटू 20/4
कैंसिल करो 5, दैट इज इक्वल टू 15th आइटम। 15 नंबर वाला आइटम क्या है? Q3 क्लास है। तो देखेंगे Q3 क्लास 15 नंबर वाला आइटम कौन सा है, उसको थोड़ा ढूंढेंगे, फिर जाकर हमको पता चलेगा। देखो Q3 15 नंबर वाला आइटम कहां पर है? ये है, देखो, हाँ ये वाला केस 15 नंबर वाला आइटम। 15 नंबर वाला आइटम कहां पर आता है बेटा? ये 15 नंबर है। 15 नंबर 2 में 15 नहीं, 5 में 15 नहीं, 10 में 15 नहीं, 12 में 15 नहीं, 15 में 15 है। अगर 15 में 15 है, ये हो गया हमारा Q3 क्लास। बेटा Q3 क्लास कितना आया? Q3 क्लास आ गया आपका 40 से 50, 40 से 50। समझ में आ गया? अच्छा, 40 से 50 Q3 क्लास है, समझ में आ रहा है? उसका लोअर लिमिट कितना है? 40 है। उसका CF कितना होगा? उसके ऊपर वाला क्लास का मतलब 12 होगा, और उसका F कितना होगा? उसी वाला क्लास का 3 होगा। तो हमको CF मिल गया ये 12 और F है 3, ये Q3 के लिए ये दोनों मिल गए। समझ में आ गया? 12 3 है। तो लिखेंगे अभी ये डाटा को थोड़ा उतार लो, तुम देखोगे अभी Q3 निकालेंगे तो Q3 क्लास मेरा हो गया 40 to 50। तो Q3 क्लास इज इक्वल टू हम लिखेंगे 40 to 50। एक बार Q3 क्लास निकल गया, फिर हम Q3 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है Q3 का? L प्लस 3n/4 माइनस CF बाई F इंटू आई। ये फॉर्मूला है बेटा। एल का मतलब लोअर लिमिट। बेटा 40 to 50 का लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट है 40 प्लस 3n/4। 3n/4 अभी कैलकुलेट किए हैं, कितना होता है? 15 माइनस CF। CF देखे थे वहां पर कितना? 12 बाई F। F कितना? F 3 देखे थे, इंटू आई। आई मतलब क्लास गैप, 40 से 50 के बीच में गैप। 40 से 50 के बीच में कितना गैप है? 10 गैप है। तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस ये हो गया 3/3 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 3/3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू 50। तो हमारा Q3 आ गया 50। देयरफॉर आपका क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा था। Q1 पूछा था, Q2 पूछा था, Q3 पूछा था। Q1 का वैल्यू मिल गया, Q2 का वैल्यू मिल गया, Q3 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो Q1 हुआ कितना आपका? 20। Q2 आपका निकला कितना? Q2 का वैल्यू आया 30, और अभी हम निकालेंगे Q3 का वैल्यू। Q3 का वैल्यू कितना आया आपका? Q3 का वैल्यू आया 50। These are the solution of the problem. These are the 3 क्वार्टाइल्स। इसमें से Q1 और Q3 ये दोनों को बोलते हैं एक्सट्रीम क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम क्वार्टाइल। व्हाट इज एक्सट्रीम क्वार्टाइल? एक्सट्रीम क्वार्टाइल अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कभी कभी फाइंड आउट द एक्सट्रीम क्वार्टाइल। एक्सट्रीम क्वार्टाइल कौन कौन सा है? Q1 है, Q3 है। कभी कभी मिडिल क्वार्टाइल पूछता है। मिडिल क्वार्टाइल कौन सा है? Q2 है। मिडिल क्वार्टाइल जो है, मीडियन वही है। समझ में आ रहा है? हमें क्लियर? अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अभी और एक एग्जाम्पल करेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है फाइंड आउट Q1, Q2 एंड Q3।
Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? X दिया हुआ है और F दिया हुआ है। तो X क्या है, F क्या है देखते हैं। X values are given, F values are given. Now what is X value? X value is given 10 to 20. नेक्स्ट दिया हुआ है 20 to 30. नेक्स्ट दिया हुआ है 30 to 40. नेक्स्ट दिया हुआ है 40 to 50. नेक्स्ट दिया हुआ है 50 to 60. नेक्स्ट दिया हुआ है 60 to 70. नेक्स्ट दिया हुआ है 70 to 80. सो एक्स वैल्यू इज गिवन. नाउ एफ वैल्यू इज गिवन. एफ वैल्यू कितना है? 10 से 20 के बीच में 3, 20 से 30 के बीच में 5, 30 से 40 के बीच में 3, 40 से 50 के बीच में 4, 50 से 60 के बीच में 7, 60 से 70 के बीच में 10 और 70 से 80 के बीच में 8. तो एन कितना है? एन वैल्यू इज इक्वल टू, इसको मिला देंगे एन निकल जाएगा 3 5 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 10 32, 32 8 40. इसका Q1 निकालना है, Q2 निकालना है और Q3 निकालना है. 3 वैल्यू निकालना है. Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, Q3 का वैल्यू. क्या करेंगे? पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. फर्स्ट CF, फर्स्ट वाला का कितना होगा 3, सेकेंड वाला का कितना होगा 3 + 5 8, थर्ड वाला का 8 + 3 11, फोर्थ होगा 11 + 5 15, 15 + 7 22, 22 + 10 32, 32 + 8 40. सब कुछ मिल गया. अभी Q1 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे. पहले Q1 कैसे निकलेगा? पहले Q1 क्लास निकलेगा. तो निकालिए Q1 क्लास. फॉर्मूला क्या है Q1 क्लास का? अभी पढ़े थे n/4 आइटम, दैट इज इक्वल टू n/4 आइटम. n कितना दिया हुआ है? 40, 40/4 दैट इज इक्वल टू 10th आइटम. 10 नंबर वाला आइटम क्या है? Q1 है. तो Q1 कितना है? Q1 क्लास अभी निकाल सकते हैं. Q1 क्लास 10 नंबर वाला आइटम. 10 नंबर वाला आइटम 3 में 10 है क्या? नहीं. 8 में 10 है क्या? नहीं. 11 में 10 है. तो 11 में है तो व्हाट इज द क्लास? क्लास इज इक्वल टू 11 के सामने में जो लिखा हुआ है, 11 के सामने में कितना है? 30 to 40. तो Q1 क्लास इज इक्वल टू 30 to 40. बेटा Q1 क्लास आ गया 30 से 40. 30 से 40 आपका Q1 क्लास आ गया. तो अभी Q1 निकालेंगे. कैसे निकालेंगे Q1? फॉर्मूला डालेंगे Q1 का, Q1 निकल जाएगा. तो फॉर्मूला Q1 का डालिए. Q1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? L + 3n/4 - CF/F × I. बेटा L का मतलब क्या है? लोअर लिमिट. लोअर लिमिट कितना है? 30 और 40 के बीच में लोअर लिमिट 30 प्लस, ये गलत हो गया, फर्स्ट 3n लिख दिया हूं मैं, ये n/4 है. Q1 इज इक्वल टू L + n/4 - CF/F × I. ओके. Q1 होगा n/4, Q2 होगा 2n/4, Q3 होगा 3n/4. मैं गलती से 3n/4 लिखा था, ये n/4 है. तो L + n/4, n/4 कितना है? अभी कैलकुलेट कर चुके हैं. n/4 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. कितना n/4? n/4 है 10. ये कैलकुलेट कर चुके हैं. तो ये है 10. तो ये हो गया n/4 मीन्स 10 माइनस CF. CF बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके एभव वाला क्लास का, इसके एभव वाला क्लास ये है, इसका CF कितना है? 8 -8 बाई F. F मतलब उसी का, उसी का कितना? 3. तो बाई 3 इंटू I. I का मतलब क्या है? इंटरवल. 30 और 40 के बीच में इंटरवल कितना है? इंटरवल है 10. वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस ये हो गया 2/3. 2/3 इंटू 10, 2 × 10 हो गया 20/3.
दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 20/3, 20/3 आपका आ जाएगा 6.67, दैट इज इक्वल टू वैल्यू आ गया 36.67। ये किसका वैल्यू आ गया, Q1 का वैल्यू। बेटा Q1 समझ में आ रहा है, पहले Q1 का कैलकुलेशन समझ में आ गया, Q1 क्लास निकला, फिर ये होगा, फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे Q2 क्लास। निकालो Q2 क्लास। Q2 क्लास इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा उसी हिसाब से, पहले n/4 था, अभी हो जाएगा 2n/4 आइटम, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू n कितना है, n है 40/4, दैट इज इक्वल टू 20th आइटम। 20 नंबर वाला आइटम कहां पर है ढूंढेंगे, देखो Q2 क्लास कितना होगा, Q2 क्लास इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखेंगे कितना होगा, अच्छा 20, 3 में 20 है क्या, नहीं, 8 में है क्या, नहीं, 11 में 20 है क्या, नहीं, 15 में 20 है क्या, नहीं, 22 में 20 है। अगर 22 में 20 है तो 22 के सामने जो लिखा हुआ है वो हो गया आपका Q2 क्लास। 22 के सामने कितना लिखा हुआ है बेटा, 22 के सामने आपका है 50 से 60। ये Q1 क्लास का था, ये Q2 क्लास का आ गया। अच्छा, तो अभी सारा कैलकुलेशन ये 50 से 60 को देखकर करेंगे। तो Q2 का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, L प्लस, हाँ यहां पर इंपोर्टेंट, यहां पर n/4 है, यहां पर होगा 2n/4 माइनस CF/F इंटू आई। बेटा L कितना है, लोअर लिमिट, Q2 क्लास कितना आया, Q2 क्लास आपका आया 50 से 60, तो 50 से 60 का लोअर लिमिट, बेटा 50 से 60 का लोअर लिमिट कितना होगा, 50 प्लस 2n/4, 2n/4 अभी ऊपर में निकाले हैं, 2n/4 कितना आया 20, ये वाला, माइनस CF, माइनस CF बहुत इंपॉर्टेंट है, CF का मतलब उसका प्रीवियस वाला क्लास का, बेटा 50 से 60 का ऊपर वाला क्लास ये है, इसी का क्या है CF, यही है, कितना 15, तो दिस इज 15 माइनस 15 बाई F, F मतलब उसी क्लास का F, उसी क्लास का F कितना है 7/7 इंटू आई, आई कितना है बेटा, आई है 50-60 का गैप 10, तो आ गया कितना 50 प्लस, ये हो जाएगा कितना 20 माइनस 15 5, 5/7 इंटू 10 इज इक्वल टू 50/7, दैट इज इक्वल टू 50 प्लस कितना हो जाएगा 50/7, 50/7 हो गया 7.14, 50 प्लस 7.14 बेटा कितना आ जाएगा 57.14, दिस इज आवर Q2। एक बार Q2 निकल गया, अभी उसी हिसाब से हमको क्या निकालना है Q3, तो पहले निकालते हैं Q3 क्लास, निकालो Q3 क्लास, फास्ट लिखो Q3 क्लास, कैसे निकालेंगे Q3 क्लास, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, हाँ Q3 क्लास निकालेंगे, Q3 क्लास कैसे निकालेंगे, पहले Q3 क्लास इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है Q3 क्लास 3n/4 आइटम, बेटा 3n/4, 3n/4 मतलब क्या करेंगे 3 इंटू n, n कितना है, n अभी देखेंगे n तो 40 था, बाई 4 कितना होता है 30th आइटम, 30 नंबर वाला आइटम आपका क्या है, आपका है 30 नंबर वाला आइटम आपका है Q3। अभी ढूंढेंगे 30 कहां पर है, 30 कहां पर, 3 में है क्या, नहीं, 8 में है क्या, नहीं, 11 में है क्या, नहीं, 15 में है क्या, नहीं, 22 में है क्या, नहीं, 32 में है क्या, हाँ 32 में 30 है, तो ये जो आइटम आ गया 60 से 70, दिस विल बी आवर Q3 क्लास। सो व्हाट इज Q3 क्लास, तो Q3 क्लास कितना है, तो लिखेंगे Q3 क्लास इज इक्वल टू
किससे कितने के बीच, 60 से 70। अगर Q3 क्लास निकल गया, अभी Q3 निकालने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज Q3, फॉर्मूला डालेंगे Q3 इज इक्वल टू एल प्लस, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 2n/4 था, यहाँ पर फॉर्मूला में आ जाएगा 2n, यहाँ पर Q1 में n/4 था, Q2 में 2n/4 हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 3n/4 माइनस CF/F इंटू आई, दैट इज इक्वल टू एल कितना है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है बेटा, 60 से 70 का लोअर लिमिट कितना है, 60 प्लस 3n/4 ऊपर निकाले हैं कितना आया, 30 माइनस ये CF बहुत इंपॉर्टेंट है। CF क्यों इंपॉर्टेंट है, CF किसका, उसके ऊपर वाला, 60 से 70 ये क्लास है, इसके ऊपर वाला क्लास का CF, इसके ऊपर वाला क्लास का CF कितना आता है, 22 आता है। दिस इज आवर CF, समझ में आ गया, ये 22 है हमारा CF, क्योंकि 60 से 70 क्या ऊपर में, और F कितना है, तो CF आ गया 22 बाई F कितना है, उसी क्लास का, उसी क्लास का कितना है बेटा, उसी क्लास का है 10, तो ये हो गया बाई 10 इंटू आई कितना है, डिफरेंस, डिफरेंस बेटा कितना है, डिफरेंस इसका हो गया 60 से 70 का 10, तो कितना आता है 60 प्लस ये 30 से 22 हो गया, तो 8/10 इंटू 10, ये 10 बेटा कैंसल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 68, तो Q3 आ गया आपका 68। बेटा समझ में आ रहा है क्या, क्लियर। Q3 कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अभी थोड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे, तो देखेंगे। लिखो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, some important points heading करो, some important points for calculation of quartile, important points for computation of quartile। कुछ क्वार्टाइल का कंप्यूटेशन में इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारा पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1, इफ द डाटा इज नॉट अरेंज्ड फर्स्ट अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर डाटा अरेंज नहीं है तो पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इफ डाटा इज नॉट अरेंज्ड first arrange it in ascending or descending order। पॉइंट नंबर 1 ओवर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अगर इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है, व्हाट इज इंक्लूसिव सीरीज समझा दिया हूं, 0 to 9, 10 to 19, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस टाइप का दिया हुआ है, उसको गैप बाय 2 डालकर पहले एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। इफ इस इंक्लूसिव सीरीज, if inclusive series is given, first convert it into exclusive one by applying gap by 2 formula।
ये कैसे करते हैं, हम बहुत बार कर चुके हैं। ओके, सेकंड गया। थर्ड, अगर क्वेश्चन में ऑन इक्वल सीरीज दिया हुआ है, ऑन इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, या क्वेश्चन में ओपन एंडेड सीरीज दिया हुआ है, तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इसको आज यूजुअल करेंगे। समझ में आ गया? तो थर्ड लिखेंगे, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, नो स्पेशल ट्रीटमेंट is required for first on equal सीरीज, ऑन इक्वल सीरीज में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। सेकेंड, ओपन एंडेड सीरीज, ऑन इक्वल सीरीज या ओपन एंडेड सीरीज में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन शुड बी मेड एज यूजुअल। Am I clear? So these are some of the points. Fourth point, last point. If cumulative frequency distribution is given, that is less than or more than series is given, we have to first convert it into X and F form, then calculate quartiles. Next लिखेंगे, if cumulative frequency distribution series, what is cumulative frequency distribution series? मैं बताया था, less than or more than series is given, first compute X and F by applying common sense. Then compute quartiles. पहले एक से फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करो। तो ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या 4 पॉइंट? पहला पॉइंट है, अगर डाटा अरेंज नहीं हुआ है उसको अरेंज करना पड़ेगा। अगर डाटा इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑन इक्वल ओपन एंडेड सीरीज दिया हुआ है कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेस देन और मोर देन सीरीज दिया हुआ है उसको पहले एक्स और एफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? विथ दिस वी कंक्लूड आवर सेशन टुडे। बट बिफोर कंक्लूडिंग माय सेशन, लेट मी टेल what we have read today. आज हम क्या क्या पढ़े बेटा? आज हम पढ़े क्या? First we have discussed today we have discussed regarding quartile. We have discussed quartile is something which divides the entire series into 4 equal parts. Next हम पढ़े how to compute quartile in case of individual series. Formula is n+1 by 4th item Q1 में. Then in case of discrete series, then in case of continuous series का 2 example की. Okay, with this we conclude our discussion on quartile. And before concluding my lesson, let me first repeat, if you have not subscribed to my YouTube channel, you can subscribe my YouTube channel. My YouTube channel is Commerce Forum. Okay, and once you subscribe it, you have to press the bell icon. Press the bell icon. Once you press the bell icon, you will get all my latest videos is in there. If you have still any doubt, you can email me in my mail ID. My email ID is biswamishra@gmail.com. With this, let me conclude my session today. Thank you all for watching my videos. Okay, have a good day. Thank you all.